हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईथरनेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ईथरनेट के फ्रेम फॉर्मेट पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम देखेंगे कि ईथरनेट होता क्या है, इसका फ्रेम फॉर्मेट क्या है, ईथरनेट क्या वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ईथरनेट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे आउटकम्स क्या होंगे आज के लेक्चर के। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज ईथरनेट फर्स्टली, देन इवोल्यूशन ऑफ ईथरनेट, देन फ्रेम फॉर्मेट ऑफ ईथरनेट, नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईथरनेट फ्रेम्स, ईथरनेट एड्रेस, ईथरनेट ट्रांसमीटर एल्गोरिथम, experience with the Ethernet, and some solved examples on of previous year GATE questions. तो ये सब आप आज का लेक्चर के बाद हमारे ये आउटकम्स होंगे कि यू विल नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट द ईथरनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट। सो प्लीज डोंट वरी, आज का टॉपिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल बेस्ड हो सकता है, बट यू विल गेट मोस्ट ऑफ द नॉलेज अबाउट द ईथरनेट फ्रॉम दिस टॉपिक। जिससे क्या होगा, जो एमसीक्यूज होंगे चाहे वो थ्योरेटिकल बेस्ड हो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड हो, यू कैन इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, so let's start. First, what is the Ethernet? So definition of Ethernet is a widely used network technology for connecting the computers and other devices within a local area network, that is LAN. So the origin is, it is developed in the 1970s at the Xerox PARC. Ethernet has since become the de facto standard for your wired LANs. So if we talk about the key features of Ethernet, the key features are, first is compatibility. So Ethernet is compatible with various networking standards and allowing different devices to communicate seamlessly. Next is scalability. So it supports a wide range of network sizes for small office setup to a large enterprise network. Next is the reliability. So what reliability means here, Ethernet offers a reliable data transmission with built-in error detection and correction mechanism. Next is your cost effectiveness. See, Ethernet infrastructure is very cost effective to deploy and maintain, making it accessible to a wide range of users. Now if we talk about the applications, so Ethernet is used in various applications like including your internet access, your file sharing, printing, video streaming and more. And significance of Ethernet is, Ethernet has played a crucial role in the development of modern networking, enabling the proliferation of the internet and facilitating digital transformation across the industry. So next slide is the evolution of Ethernet. So Ethernet was initially developed at Xerox PARC in the 1970s by Robert McCulloch, which was based on a coaxial cable known as TAN base 5. Now what TAN base 5 means, we will understand here. So TAN base 5 is introduced in 1980. It is a thick coaxial cable and it is operated at 10 Mbps. Okay, this 10 stand for 10 Mbps. Next is TAN base 2. It is also known as a ThinNet, and this uses a thinner coaxial cable and allowed for a easier installation, and it will also operate at 10 Mbps. Now next is TAN base T. It introduced in the early 1990s and it used twisted pair cables and offerings more flexibility and scalability. Okay, इसमें twisted pair cables हैं, इसमें thin coaxial cables हैं, इसमें thick coaxial cables हैं. Fast Ethernet. So IEEE 802.3U standard introduced in 1995, offering the speed of 100 Mbps. फास्ट इथरनेट से पहले जो अर्ली वर्जन थे उसमें स्पीड क्या थी आपकी 10 Mbps, जबकि जो फास्ट इथरनेट आया उसमें आपकी स्पीड क्या आई है 1995 में, ऑफरिंग इट इज द स्पीड्स ऑफ 100 Mbps. नाउ व्हाट IEEE 80.23U इज, सी basically in Ethernet they are coming into the family of IEEE 802.3 of the standard, that the Ethernet protocol touches both layer 1 that is your physical layer and layer 2 that is your data link layer on your OSI मॉडल. इसलिए आप यहाँ पे इसको कौन सी फैमिली में डाला है, IEEE के IEEE 802.3 में. नेक्स्ट इज योर गीगाबिट ईथरनेट. गीगाबिट ईथरनेट में कितनी स्पीड आपकी आती है 1 Gbps की.
ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि भाई कौन सी स्पीड्स आपकी, क्या क्या स्पीड्स आपकी ये ऑफर करता है। इसके कुछ फर्दर एडवांसमेंट्स भी हैं। 10 गीगाबिट ईथरनेट भी है, 40 गीगाबिट ईथरनेट भी है। 10 गीगाबिट ईथरनेट में स्पीड कितनी है, 10 Gbps, जबकि 40 गीगाबिट ईथरनेट या फिर हम 100 गीगाबिट ईथरनेट की बात करें तो दे स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ योर हायर बैंडविड्थ इन डेटा सेंटर्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग environment. So now this is the frame format of your Ethernet. This is very important frame format. You need to understand what bits represent what. Okay, so yeah, here we have a Ethernet frame format and we have a Ethernet header. So start with the first block. First block represent the preambles bits and these are the 7 byte. So it is a 7 byte field consisting of alternating ones and it is used for synchronization and the timing recovery. So preamble है, 7 byte इसका फील्ड है और इसमें किस लिए यूज होती है, इट्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइमिंग रिकवरी. नेक्स्ट जो फ्रेम आपका है यहाँ पे फील्ड वो है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, इसको SFD भी बोलते हैं. SFD कितने बाइट का है, यहाँ पे 1 बाइट का है और ये क्या मार्क करता है, एंड ऑफ द प्रेम्बल को और बताता है स्टार्ट ऑफ द फ्रेम को. इसके बाद आपका आ जाता है डेस्टिनेशन एड्रेस. अब देखिए क्योंकि आपका ईथरनेट जो है डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है और डेटा लिंक लेयर पे हम यूज करते हैं फिजिकल एड्रेसिंग एंड दैट फिजिकल एड्रेसिंग रिप्रेजेंट द मैक एड्रेस ओनली. सो दैट्स व्हाई हियर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो कितने का होगा, 6 बाइट का, जो कि बताएगा आपका डिवाइस का, जो रिसिपेंट डिवाइस है उसका एड्रेस, सोर्स एड्रेस जहां से आपका डेटा ओरिजिनेट हुआ है उस डिवाइस का एड्रेस देगा. यहाँ पे भी आपका मैक एड्रेस यूज होगा. ये दोनों 6 बाइट्स के होंगे क्योंकि जो मैक एड्रेस होता है वो आपका 6 बाइट का होता है. इसके बाद आ जाती है आपकी लेंथ जो कि है आपकी 2 बाइट की और ये क्या इंडिकेट करती है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द पेलोड, आइदर IP और ARP और द लेंथ ऑफ द पेलोड इन अ बाइट्स. Okay, see these all are things in a byte, means in a 1 byte we have a 8 bits. तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बिट्स इसमें प्रीएम्बल में कितने हो जाएंगे, 7 बाइट है तो 7 into 8 इट इज अ 56 बिट्स. दिस इज 8 बिट, दिस इज 6 into 8 48 bit. This is also 6 into 8 is 48 bit. This is 2 bytes, so 2 into 8 is 16 bit. Okay, this is your 46 to 1500 byte. Okay, this is your data size. Okay, it is a variable length field containing the actual data being transmitted and up to a maximum of 1500 byte we can send here. And the CRC we know is used for error detection and it is calculated over the entire frame excluding the preamble and SFD. क्या कह रहा है ये CRC जो है ये आपका कंप्लीट फ्रेम पे कैलकुलेट होता है, बट हियर व्हाट यू एक्सक्लूड, यू हैव टू एक्सक्लूड 2 फील्ड्स, प्रीएम्बल फील्ड एंड स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर फील्ड वी हैव टू एक्सक्लूड व्हाइल वी कैलकुलेटिंग दी CRC कोड. नाउ व्हाई वी एक्सक्लूड दिस, मींस हम इसको क्यों कंसीडर नहीं करते जब CRC को हम चेक CRC इस पे इम्पोज करते हैं, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखिए जो हमारे ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो ये फर्स्ट 2 फील्ड्स होते हैं, दिस इज रिलेटेड टू योर फिजिकल लेयर हेडर. दैट्स व्हाई यू डोंट यूज और यू डोंट इम्पोज योर CRC ऑन दैट 2 फील्ड्स. दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्सक्लूड दीज 2 फील्ड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द CRC. Okay, here this preamble bit is 7 bytes and SFD is 1 byte, so total it is 8 bytes. So 8 bytes and how many bits then, 8 into 8 64 bits. So this preamble is 56 bits of alternating ones and zero used for synchronization basically, and this SFD is your start frame derivative, shows the starting of the frame, and here we use generally a flag values. नाउ ये हमने देख लिया डेस्टिनेशन, मैक और टाइप. अब यहाँ पे आप देखिए डेटा एंड पैडिंग. यहाँ मैंने डेटा एंड पैडिंग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मिनिमम लेंथ होगी डेटा की वो कितनी होगी 46 बाइट्स और मैक्सिमम जो होगी वो होगी 1500 बाइट्स. अब अगर हम मिनिमम पेलोड लेंथ की बात करें तो अगर वो 46 है तो हमारे फ्रेम का साइज क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग दिस प्रीएम्बल एंड SFD, मिनिमम फ्रेम लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 64 बाइट्स. 64 बाइट्स क्यों होंगी, क्योंकि देखो मिनिमम पेलोड लेंथ हो गई 46 प्लस this destination address bytes plus this source address byte plus this type byte and CRC byte. तो 46 प्लस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 is 14 प्लस 4 is 18. तो 46 प्लस 18 is your 64
bytes. So this is the minimum frame length in your Ethernet frame format. And maximum frame length कितनी हो जाएगी? अगर maximum payload length हम कितनी बोल रहे हैं 1500 bytes को, तो 1500 में आपको ये 48 bytes, सॉरी 1500 bytes में आपको ये 18 bytes ऐड करनी होगी. तो 1500 प्लस 18 bytes कितनी हो जाएगी? 1518 bytes. तो मिनिमम फ्रेम लेंथ कितना हो जाएगा? 64 bytes. और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ कितना हो जाएगा? 1518 bytes. ओके, यहाँ पे ये इस पे इतना इम्पोज क्यों कर रहे हैं, इस चीज पे इतना एनफोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपोज अगर आपका जो डेटा है वो 46 बाइट से कम होता है, जैसे 40 होता है या 30 होता है, देन यू नीड टू ऐड पैडिंग टू मेक इट इन अ मिनिमम पेलोड लेंथ. ओके, जैसे अगर 30 बाइट्स का डेटा है तो यू हैव टू ऐड 16 बाइट्स टू मेक इट अ मिनिमम पेलोड लेंथ. Okay, this is your payload. Data and padding indicates the payload. So if you have suppose 30 byte of data, then इसको Ethernet frame format में set करने के लिए you need to require how many bytes? 16 bytes you need to require to make it a minimum payload length. And if it is a exceed to the 1500, then we divide the data and means add more Ethernet frames to send the data. Okay, that's why we imposed here that minimum payload length should be 46 bytes and maximum payload length is the 1500 bytes. Okay, and this is your CRC. Now see the frame length. Ethernet has imposed restriction on both the minimum and maximum length of a frame. Now I hope कि आपको पैडिंग का मतलब यहाँ समझ में आया हो. अगर डेटा की वैल्यू आपकी मिनिमम पेलोड लेंथ से कम होती है तो उस केस में आप पैडिंग ऐड करते हो ताकि आप इसको कंस्ट्रेंट पे सेटिस्फाई करा सको 46 बाइट्स पे मिनिमम वैल्यू पे. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज हियर पैडिंग. मिनिमम लेंथ रेस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड for the correct operation of CSMA CD. So what CSMA CD means? Carrier sense multiple access collision detection. ये हमने देखा था कि ये यूज होता है हमारे Ethernet के अंदर CSMA CD. तो यहाँ पे that's why CSMA CD में हम मिनिमम लेंथ रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम पेलोड लेंथ और मैक्सिमम पेलोड लेंथ को सेट करते हैं. और दिस प्रीएम्बल एंड एसएफडी इज रिलेटेड टू योर फिजिकल लेयर हेडर. तो ये इस पे आपका सीआरसी अप्लाई नहीं होगा. तो अब आप देखिए ये एक ही स्लाइड में कितने सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो गए कि अगर प्रीएम्बल बिट पूछ ली जाए, एसएफडी बिट पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए कितने बिट्स हैं. प्लस जब आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या सीआरसी जो है वो कंप्लीट ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट पे अप्लाई होता है या फिर यू नीड टू एक्सक्लूड दिस प्रीएम्बल एंड एसएफडी, देन यस वी हैव टू एक्सक्लूड दिस टू फील्ड्स. ओके, और क्या पूछ सकते हैं कि ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट में मिनिमम पेलोड लेंथ कितनी होती है, तो 46 है. और अगर 46 नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ऐड सम पैडिंग. और मैक्सिमम पेलोड लेंथ कितनी होती है 1500. तो ये तो पेलोड लेंथ की बात हुई. अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम फ्रेम लेंथ कितनी होगी तो यू नीड टू ऐड दिस 18 बाइट्स. दिस इज टोटल 18 बाइट्स. तो 46 प्लस 18 इज 64 बाइट्स हो जाएगी मिनिमम फ्रेम लेंथ. इसी तरीके से अगर आपसे मैक्सिमम पेलोड लेंथ पूछ ली जाए तो वो तो होती है 1500 बाइट्स. लेकिन अगर मैक्सिमम फ्रेम लेंथ पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 1500 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 इज 1518 बाइट्स. तो देखिए ये एक ही स्लाइड में आपके कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फ्रेम फॉर्मेट फॉर द ईथरनेट. ठीक है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा ऑटोमेटिकली कि कौन सा फील्ड किस चीज को इंडिकेट कर रहा है. दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है, ईथरनेट जो फ्रेम फॉर्मेट है वो आप डेटा लिंक लेयर पे और फिजिकल लेयर पे वर्क करा रहे हो. डेटा लिंक लेयर में हम यूज करते हैं फिजिकल एड्रेसेस, और फिजिकल एड्रेसेस आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मैक एड्रेसेस के फॉर्म में. इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईथरनेट uses the MAC एड्रेस. तो ईथरनेट एड्रेस जो होता है वो भी MAC एड्रेस ही होता है. और वो MAC एड्रेस कितने बाइट्स का होता है, 6 बाइट्स का, क्योंकि देखो डेस्टिनेशन एड्रेस भी 6 बाइट का है, सोर्स एड्रेस भी 6 बाइट्स का है. और ये एड्रेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, MAC एड्रेस को. तो यहाँ पे MAC एड्रेस कितने का हो जाएगा, 6 बाइट्स का. ओके, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईथरनेट फ्रेम, आई होप ये आपको समझ आ गया हो. ये स्लाइड मैंने आपकी नोट्स में लिखने के लिए ऐड की है, तो प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ईथरनेट एड्रेस. सो एन ईथरनेट एड्रेस ऑल्सो नोन एज अ मैक एड्रेस. ये भी मैंने आपको बताया ही है. मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू ईच नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर फॉर कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क. So this MAC address is a unique identifier, okay,
point to be noted here that it is a unique identifier assigned to each network interface controller NIC for a communication within a network. And how many bytes we have in a MAC address? 6 byte. So 6 bytes हैं तो बिट्स कितनी हो जाएगी? एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं तो 6 into 8. ओके, so 6 into 8 is your 48 bit. So it is a 48 bit hexadecimal number. ठीक है, कौन सा नंबर होता है? हेक्साडेसिमल. Typically represent as 6 groups of 2 hexadecimal digits separated by colon. For example, यहाँ पे देखो, this is your first byte, second byte, third byte, fourth byte, fifth byte and sixth byte. बाइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो ये फर्स्ट कॉलन है, ठीक है, फर्स्ट जो आपका ग्रुप है वो आपका क्या बताएगा? दिस फर्स्ट जीरो रिप्रेजेंट बाय 4 बिट्स. ओके, 4 बिट्स क्यों? क्योंकि आप इसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कर रहे हो, और हेक्साडेसिमल में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी भी एक सिंगल बिट को? 4 बिट्स में. एंड दिस जीरो इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय 4 बिट्स. so 000 होता है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करते हो तो आपको कितनी बिट्स मिल रही है? 8 बिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और 8 बिट्स इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट. ओके, दैट मीन्स एक ग्रुप आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बाइट. तो 6 ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपके? 1 बाइट इंटू 6 ग्रुप्स हैं तो टोटल बाइट्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 6 बाइट्स. और बिट्स कितनी हो जाएंगी? 6 इंटू 8 इज 48 बिट्स. ओके, आई होप ये एड्रेस समझ में आया होगा. अब जो ये एड्रेस है इसका जो फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस identify the manufacturer of the network interface known as the OUI, means organizationally unique identifier. और जो सेकंड हाफ होता है मैक एड्रेस का is assigned by the manufacturer and uniquely identify the specific network interface. Okay, so what uniqueness here is, MAC addresses are intended to be globally unique, ensuring that no two network interface have the same address. Okay, while collisions are theoretically possible due to the finite number of available MAC addresses. So while collisions are theoretically possible, why? Because of finite number of available MAC addresses, the likelihood of two devices having the same MAC address is extremely low, because we assign a unique MAC address to each and every device in the globally networks. Okay, now what is the usage of this Ethernet address? So this MAC addresses are used in Ethernet network to determine the source and destination. अभी हमने इसका फ्रेम फॉर्मेट देखा था. यहाँ पे आपके MAC addresses किस लिए यूज हो रहे थे? डेस्टिनेशन को और सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है कि इसका यूसेज क्या है. These are used in the Ethernet network to determine the source and destination of the data packet. So they are crucial for addressing and routing the data within the network, allowing the devices to communicate with each other effectively. So here address resolution protocols are used. These protocols are used to map your IP address to the MAC address within a local network. It allows the devices to discover the MAC address corresponding to a given IP address, and it will facilitate the communication between devices on the same subnet. अभी subnet क्या होता है, supernet क्या होता है, ये सब हम जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे. अभी आप बस इतना समझ लीजिए, ईथरनेट के अंदर मैक एड्रेसेस यूज होते हैं, और मैक एड्रेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के डेटा पैकेट्स को. और यहाँ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है जो मैप करता है आपके आईपी एड्रेसेस को मैक एड्रेसेस में विद इन अ लोकल नेटवर्क. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है. देखो ये अगर आपका ईथरनेट एड्रेस है, सपोज दिस इज योर ईथरनेट एड्रेस. देखो 6 बाइट्स हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड एवरी बाइट हियर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 तो बाइट्स है और 0 रिप्रेजेंट होगा 4 बिट्स से. तो 6 तो बाइट्स हैं, यानी कि कितनी हेक्स डिजिट्स हो गए, 12 हेक्स डिजिट्स हो गए, क्योंकि एक ग्रुप में 2 हेक्स डिजिट्स हैं. और एक हेक्स डिजिट में कितनी बिट्स होती है बाइनरी की, 4. तो 12 इंटू 4 करें तो भी 48 होगा, और 6 इंटू 8 करें तो भी 48 होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइट्स हैं. ठीक है, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, 48 बिट्स. अब अगर आप इन बाइट्स को अरेंज करें तो दिस इज योर बाइट 1, देन योर बाइट 2, बाइट 3 एंड सो ऑन बाइट 6. नाउ इन योर बाइट 1, this least significant bit represent whether your network is a unicast or multicast. तो अगर ये least significant bit की वैल्यू 0 होती है
तब तो ये क्या हो जाता है, यूनिकास्ट। और अगर इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में क्या हो जाता है, मल्टीकास्ट। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर आपको ईथरनेट एड्रेस दे रखा है और उसकी जो फर्स्ट आपको बाइट की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि वेदर इट इज अ यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट, तो आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखनी है कि अगर 0 है तो यूनिकास्ट, 1 है तो मल्टीकास्ट। और एक चीज और है कि अगर सारी बाइट्स की वैल्यू 1 है, मीन सारी फील्ड की वैल्यू क्या है, 1 1 1 अप टू यहाँ तक, मीन्स ऑल वैल्यूज आर 1 इन योर ईथरनेट एड्रेस, तब किस टाइप की एड्रेसिंग हो जाएगी आपकी, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इस केस में कैसी एड्रेसिंग हो जाएगी आपकी, ब्रॉडकास्ट। ये बात भी ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो 3 तरीके के एड्रेस हो सकते हैं आपके, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू होगी 0, मल्टीकास्ट है तो 1, और अगर सारी ही वैल्यूज 1 है तो उस केस में किस तरीके का एड्रेस हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। Okay, so this bit define the type of address. Now, Ethernet addresses are typically printed in a human readable format as a sequence of 6 numbers separated by the colons. So each number corresponds to 1 byte of the 6-byte address and is given by a pair of hexadecimal digit, one for each of the 4-bit nibbles in the byte. So लीडिंग जीरोज आर ड्रॉप्ड, व्हाट इट मीन्स, देखो यहाँ पे कैसे दे रखा है, फर्स्ट ग्रुप में 8 है, सेकंड में 0, थर्ड में 2b, फिर E4, फिर B1 एंड 2। तो देखो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही बिट दे रखी है, इसका मतलब इसमें क्या है, आगे 0 है, तो लीडिंग जीरोज को ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ 8 ही है, इसके अंदर वैल्यू बाइट्स तो अभी भी 2 ही है। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट जो है बिट हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो है, सॉरी बाइट्स नहीं, डिजिट्स अभी भी यहाँ पे हेक्साडेसिमल डिजिट्स 2 हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, बस उस लीडिंग 0 को ड्रॉप कर दिया है, बट अगर आपको एड्रेस पूछा जाए तो उसमें आपको 0 को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 8 था, तो 8 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अब ये 8 ना डेसिमल नहीं है, ये 8 है हेक्साडेसिमल डिजिट। इसको हेक्साडेसिमल डिजिट को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है, 1000। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आगे 4 zeros भी ऐड करोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल डिजिट ही दे रखी है, हमें इसको 48 बिट का एड्रेस बनाना है। इस तरीके से यहाँ पे 0 है तो 0 का तो बाइनरी भी 0000 होता है, और प्लस यहाँ पे आप एक और फर्स्ट में 0 ऐड कर दोगे। 2 का हेक्साडेसिमल डिजिट दे रखा है, बाइनरी में क्या होता है, 0010, और b कितना हो जाता है आपका 1011, दिस इज योर 11। Your hexadecimal digit b is in 11 in your decimal. ओके, इसी तरीके से e को आप लिख सकते हैं, देन 4 को आप लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अब देखो, कई बच्चों को शायद नहीं पता होगा कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में, तो उसके लिए एक यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है जिससे कि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा। तो सपोज ये हमारा एग्जाम्पल था, है ना, इसको हमने इस बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया, तो आपको एक कोड याद रखने वाली बात है यहाँ पे 8421। अब देखो, अगर 8 है तो हम इस पे 8 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 8 पे 1 रख दूं और बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो आपका इसका सम 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1000, और यहाँ पे देखो यही है 1000। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज 2 का बनाना है, तो 2 के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 पे 1 रख दूं और बाकी सारी वैल्यूज अगर 0 कर दूं तो मुझे इसका बाइनरी मिल जाएगा हेक्साडेसिमल डिजिट से। तो देखो 0010, और ये आपका यहाँ पे है 0010, इसका बाइनरी फॉर्म में। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और मैं बता देती हूँ, जैसे सपोज b है तो b होता है आपका 11। ठीक है, 11 आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, 8 + 2 = 10 + 1 = 11, यानी 8 पे 1 रखना है, 2 पे 1 रखना है और 1 पे 1 रखना है, 4 हो जाएगा आपका 0। तो 8 + 2 = 10 + 1 = 11, तो इसकी बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, b का 1011, सी हियर 1011। तो इसी तरीके से ये आप सारी हेक्साडेसिमल डिजिट्स निकाल सकते हैं। तो हमारी जो टोटल हेक्साडेसिमल डिजिट्स यहाँ पे होती है 0 से f होती है। तो यहाँ पे देखिए 0 के लिए 000 हो जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा, इस 1 पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। 2 के लिए 2 पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी। 3 आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 1 3, तो 2 और 1 पे आप क्या लिख दोगे, 1 रख दोगे, बाकी वैल्यू 0 आ जाएंगी। 4 को आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट 4 अवेलेबल है तो 4 पे 1 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू 0। 5 अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 + 1 = 5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और एक यहाँ पे 1 आ जाएगा।
ठीक है। तो देखो 4 पे 1 आ गया और एक 1 पे 1 आ गया, बाकी वैल्यू 0। इस तरीके से 6 को लिखना है तो 4 and 2 is 6, तो 4 और 2 6 हो जाएगा और ये बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे 9 के बाद जो 10 होता है उसको हेक्साडेसिमल डिजिट में A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को हम C बोलते हैं, 13 को हम D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं और 15 को F बोलते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू योर बाइनरी। बस ये कोड याद रख लेना और इसमें सम परफॉर्म करके देख लेना अगर आपको जो भी यहाँ पे हेक्साडेसिमल डिजिट दे रखी है और उसका बाइनरी बनाना है। जैसे सपोज मैं आपको एक चलो बड़ा डिजिट का बना के दिखा देती हूँ। जैसे सपोज मुझे 13 यहाँ पे D गिवन होता, ठीक है, हमारे एड्रेस में D गिवन होता, सॉरी दिस इज नॉट P, दिस इज D, सो D इज गिवन होता। तो यहाँ पे अगर आप देखो D को आप डेसिमल में क्या बोलते हो 13, है ना, और 8421 में मैं 13 कैसे लिख सकती हूँ, 8 + 4 is 12 + 1 is 13। तो 8 वाली बिट पे 1 आएगा, 4 पे 1 आएगा और 1 पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1101 लिख सकते हैं D को। तो देखो 1101 है। ओके, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट होता है हमारा ईथरनेट ट्रांसमीटर एल्गोरिथम। सो ईथरनेट ट्रांसमीटर एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जब सेंडर डेटा ट्रांसमिट करता है रिसीवर पे तो व्हाट विल हैपन एंड हाउ इट विल बी रिजॉल्व इफ सम कॉलिजन्स आर अकर। सो लेट्स स्टार्ट। When the adapter has a frame to send and the line is ideal, so it transmits the frame immediately. So upper bound हमारा कितना है यहाँ पे 1500 bytes in the message means that the adapter can occupy the line for a fixed length of time. So when the adapter has a frame to send and the line is busy, it waits for a line to go to idle and then transmits immediately. And here the Ethernet is said to be a one persistent protocol because an adapter with a frame to send transmit with probability 1 whenever a busy line goes idle. यहाँ पे आपका जो इथरनेट के अंदर यूज होता है वो होता है वन परसिस्टेंट CSMA। वन परसिस्टेंट CSMA क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर अडेप्टर को लाइन फ्री मिली तो वो इमीडिएटली डेटा को ट्रांसमिट कर देता है विद द प्रोबेबिलिटी 1। दैट्स व्हाई द इथरनेट इज सेड टू बी अ वन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल। नाउ यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं CSMA। सो सिंस देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इट इज पॉसिबल फॉर टू अडेप्टर्स टू बिगिन ट्रांसमिटिंग एट द सेम टाइम। और अगर दो अडेप्टर्स एक साथ ट्रांसमिटिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो पॉसिबल केस हो सकते हैं कि दोनों ने सेम टाइम पे चैनल को सेंस किया और दोनों को आइडियल मिल गया हो, और अदरवाइज दोनों ही वेट कर रहे हो कि जो चैनल है वो बिजी से आइडियल पे जाए। तो दोनों ही केस में दो या दो से ज्यादा चैनल्स जो हैं सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, योर नेटवर्क विल बी कोलाइड। यस, सो सिंस ईथरनेट सपोज द कॉलिजन डिटेक्शन, हमने बताया ना अभी ईथरनेट किसको सपोर्ट करता है, CSMA CD। देखो ये बातें ध्यान देने वाली हैं, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि CSMA किस चीज को सपोर्ट करता है। ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाती हैं ये चीजें और यहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फ्रेम फॉर्मेट है, क्या यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल तो है बट इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं ईथरनेट के लिए। सो ईथरनेट क्या सपोर्ट करता है, CSMA CD एंड ऑल्सो अ वन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल। So each sender is able to determine that a collision is in progress क्योंकि collision detection है। Okay, so at the moment an adapter detects that it is a frame is colliding with another, it first makes sure to transmit a 32-bit jamming sequence. Okay, so while sending the next data packets, your adapter will make sure to transmit a 32-bit jamming sequence and then stops the transmission. So your transmitter will minimally send 96 bits in case of collision. 96 bits क्यों, 64 bits आपकी preamble की minimal थी plus 32 bit of your jamming sequence. Now one way that an adapter will send only 96 bits and this 96 bits called the runt frame. Okay, because this is not a data, this is a jamming sequence and this kind of frame is called a runt frame. So is if two hosts are close to each other, or and had they been farther apart, so they would have to transmit longer and thus send more bits before detecting the collision if they are apart. Okay, so the worst case scenario happen when the two hosts are at the opposite end of the Ethernet. Why? Because that time he has to send the more bits for detecting the
before detecting the collision. So to know for sure that the frame it just sent did not collide with another frame, the transmitter may need to send as many as 512 bits. 512 bits means 14 bytes of your header, 46 bytes of your data and 4 bytes of your CRC. So total 512 bits we need to send to ensure that your frame that is just sent did not collide with another frame. So what will be the algorithm? A begin the यहाँ पे हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। A begin transmitting a frame at time t and D denotes the one link latency. तो ट्रांसमिशन टाइम t पे इसने स्टार्ट किया और ये लेटेंसी कितनी है इसकी? D, वन लिंक की, ओके। Now the first bit of A's frame arrive at time t plus d. Obviously transmission time plus propagation time पे वो B पे arrive कर जाएगी, यहाँ पर ये frame यहाँ arrive कर जाएगा. Now what will happen? Suppose an instant before host A's frame arrive, host B begin to transmit its own frame. Now whenever your host A frame arrive on the host B also starting the transmission of their frame. So B's frame will immediately collide with A frame. देखो यहाँ पे इसने भी स्टार्ट कर दिया और ये पहुंचने वाला था, इस केस में क्या हो जाएगा? कोलिजन आ जाएगा, ओके। सो कोलिजन आते ही क्या हो जाएगा? होस्ट B जो है वो सेंड करेगा 32 बिट जैमिंग सीक्वेंस को, बिकॉज B डिटेक्ट द कोलिजन। A को अभी कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, बट क्योंकि B ने जस्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट किया था और A का ट्रांसमिशन का जो पैकेट था वो पहुंचने वाला था, तो यहाँ पे B को कोलिजन डिटेक्ट हो गया। तो B को कोलिजन डिटेक्ट होते ही वो क्या सेंड कर देगा? 32 बिट जैमिंग सीक्वेंस। Now host A will not know that the collision occurred until B frames reach. अब जो उसने 32 बिट जैमिंग सीक्वेंस भेजा है, होस्ट A को अभी पता नहीं कि कोलिजन डिटेक्ट हो गया। उसको कोलिजन का कब पता चलेगा? जब जो ये B का जैमिंग सीक्वेंस वाला फ्रेम है वो A पे अराइव होगा। तो A पे अराइव होने के लिए इसको अगेन वन लिंक लेटेंसी क्रॉस करनी होगी। तो कितना हो जाएगा? T प्लस 2D। यहाँ पे D हम बता रहे हैं वन लिंक लेटेंसी को, ठीक है। तो होस्ट A must continue to transmit until this time in order to detect the collision. What it means? जब तक ये टाइम पे आपका जैमिंग सीक्वेंस A पे नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा? A ट्रांसमिट करता रहेगा सीक्वेंस ऑफ बिट्स को। So host A must transmit for 2 into D to be sure that it detects all possible collision. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। ए ने डेटा ट्रांसमिट किया और जैसे सपोज ए का डेटा बी पे रीच होने वाला था, उसी केस में बी ने अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ बी को कोलिजन मिला। कोलिजन मिलने के कारण बी ने क्या करा? अपना जैमिंग सीक्वेंस भेजा। यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन टाइम है टी और वन लिंक लेटेंसी टाइम है आपका डी। तो बी ने जब जैमिंग सीक्वेंस भेजा तो बी को तो पता चल गया यहाँ पे कि कोलिजन डिटेक्ट हो गया, लेकिन ए को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 2D, क्योंकि बी के फ्रेम वापस पहुंचेगा इसके पास। तो इस ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन, जब तक कि ये टाइम नहीं होता, ड्यूरिंग दिस टाइम योर ए विल ट्रांसमिट द सीक्वेंस ऑफ बिट्स, ओके। सो दिस इज द सिनेरियो इन योर Ethernet transmitter algorithm. So here this jamming sequence is called the your run frame. This is a 32-bit frame arrives at A at a time of t plus 2D. Okay. Now how data gets sent? So here devices check if the network is free before sending the data. If it is busy, they wait. So they keep listening while sending to spot any collision. If a collision happen, they stop, wait a bit and try again. So here you need to focus on this thing. Wait a bit. How many times we need to wait? Okay. Why collision matter? So see, collision mess up your data transmission. So to fix it, devices waits randomly before trying again. While a collision happens, devices are waiting randomly before starting their next transmission. So how much time they can randomly wait? This is determined by your exponential backoff algorithm. Now what exponential backoff algorithm? मैं आपको इसको एक पहले तो इजी वे में समझा देती हूँ कि जैसे कोलिजन हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोज 1 सेकंड के लिए वेट किया, कोलिजन डिटेक्ट हुआ। सबसे पहले इसने 1 सेकंड के लिए वेट किया आपकी डिवाइस ने, फिर इसने 1 सेकंड के बाद वापस से ट्रांसमिशन को स्टार्ट किया। अगर ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और यहाँ पे वापस कोलिजन अगर इसको मिल गया, तो अब ये क्या करेगा? अपना रैंडम वेटिंग टाइम जो है उसको डबल कर देगा पहले वाले से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 सेकेंड। मीन्स आफ्टर, अब ये कितना वेट करेगा? 2 सेकंड का वेट करेगा। आफ्टर वेटिंग ऑफ 2 सेकंड इट विल अगेन स्टार्ट द ट्रांसमिशन। और सपोज अब वापस कोलिजन हैपन होगा तो ये अगेन अपने रैंडम वेटिंग टाइम को डबल कर देगा। तो अब इस केस में कितना हो जाएगा? 4 सेकंड।
So this is your exponential back-off algorithm, means you will exponentially increase your random waiting time while whenever a collision will happen. So this is thing we will explain here. After the first collision, wait for a random time between 0 and 1 times the slot time. After the second collision, it will double the time. So it will be 0 and 3 times of the slot time. After the third collision, it is 0 and 7 times of the slot time, and doubling continues for each subsequent collision up to a maximum limit. ठीक है, एक कुछ मैक्सिमम लिमिट भी होगा, ऐसा नहीं कि आप बस डबल करते जा रहे हो. यू नीड टू पुट सम मैक्सिमम लिमिट ऑन योर रैंडम वेटिंग टाइम, सो इट विल इंश्योर अ फेयरनेस इन एक्सेस टू द नेटवर्क. सो दिस इज योर बेसिकली अ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम. आई होप ये आपको समझ आई हो. ये हमने अलोहा में भी पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है. तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम का मतलब कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बस ये समझ लो कि अगर कॉलिजन आता है तो जो रैंडम वेट अमाउंट टाइम है वो आपका डबल हो जाता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है. सो इट विल गेटिंग बेटर, मीन्स इथरनेट में हम काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं, फर्दर एडवांसमेंट्स भी आए हैं, लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक फुल ड्यूप्लेक्स एंड स्विचेस मीन्स अ फ्यूअर कॉलिजन. फुल ड्यूप्लेक्स लेट्स डिवाइस सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज अ फुल ड्यूप्लेक्स मोड. जबकि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है, डेटा सेंड और रिसीव हो सकता है बट सेम टाइम पे नहीं हो सकता. एंड दिस मेक्स कॉलिजन डिटेक्शन लेस important. Now, if we talk about experience with the Ethernet, so practical applications की अगर हम बात करें तो Ethernet has been extensively used in various industries and settings including offices, schools, data centers and homes. It provides reliable connectivity for internet access, file sharing, video streaming, online gaming and other network dependent activities. So what is the advantages? Ethernet offers your high-speed data transmission, scalability, compatibility with a wide range of devices and networking technologies. And also it provides a cost-effective solution for building a local area network and connecting your devices within a limited geographical area. If we talk about the challenges, so despite its widespread adoption, Ethernet network face challenges such as network congestion, security vulnerabilities, maintenance overhead. And it also managing the large Ethernet networks requires careful planning, monitoring and troubleshooting to ensure optimal performance and reliability. So if we talk about the future outlook, so Ethernet continues to evolve the advancement in technologies such as higher data rate, improved efficiency and enhanced security features. Next is emerging technologies like Internet of Things, 5G networks are expected to further drive the adoption and evolution of Ethernet for interconnected devices and smart system. So if we talk about here the summary and conclusion, so see this is all about your Ethernet. हमने फ्रेम फॉर्मेट पढ़ा, उसका कैसे एड्रेसेस होते हैं, कैसे कॉलिजन होता है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको मिनिमाइज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम. ये आज हमने सारा Ethernet का इंट्रोडक्शन से लेके जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन था वो डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया है, सो आई डोंट वांट कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगे. दैट्स व्हाई आई विल स्विच द क्वेश्चंस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो अभी हम कंक्लूजन की अगर बात करें या समरी एंड कंक्लूजन दोनों की अगर बात करें ईथरनेट के लिए, तो की पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे. ईथरनेट इवॉल्व्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर लैन लोकल एरिया नेटवर्क. फ्रेम्स हैव स्पेसिफिक फॉर्मेट्स एंड लेंथ रिक्वायरमेंट्स. MAC addresses uniquely identified devices. Transmitter algorithms manages your data transmission. Ethernet offers speed, scalability, but faces some challenges. So conclusion is Ethernet remains vital for modern networks, adapts to technology changes, and understanding Ethernet fundamental optimizes your network. So that's it for this lecture. Thank you everyone to listening very patiently of this lecture. So I hope this will clear the concept of Ethernet to you, and in the next lecture we will discuss some numericals on based on your Ethernet framework. Thank you.